लॉर्डशिप, इन्होंने अभी तक सिर्फ आधी स्टोरी बताई है। इन्होंने एक सिविल सूट भी हमारे प्रति प्रस्तुत किया गया था न्यायालय में, जिसने न्यायालय ने इसकी सिविल सूट को निरस्त कर दिया, जो मैंने अभी ऑर्डर लगाया है। क्या बोल के सिविल सूट प्रस्तुत किया था कि हमने इनकी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया 2008 में, जबकि हमारी प्रॉपर्टी 1962 से कब्जा। लॉर्डशिप, इन्होंने जो ठीक परचेस है। किया है वो बकायदा जानकारी होते हुए परचेस किया। उसके परचेसेस में बकायदा लिखा हुआ है कि हम सारे विवाद जानते हुए इस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं। ये अच्छा, और माफिया है, हाईकोर्ट जिन्होंने ने बेचा है इस वो भी ऑर्डर माफिया है लॉर्डशिप। हाईकोर्ट और लॉर्डशिप, कब्जा हमारे पास प्राप्त है, ये लोग बोलते हैं कि हम इसकी प्रॉपर्टी में वो कर रहे हैं, जबकि हमारे उस कब्जे में हमारी आके बाउंड्री वॉल भी तोड़ दी लॉर्डशिप। मैं दुकान चलाता था पापा के बाद, मेरे गुंडे बेच के दुकान बंद करवा दी। मैं घर में रहता था लॉर्डशिप, आज किराए के घर में रह रहा हूँ। मेरे ऊपर फर्जी केस बना दिए, पुलिस से टॉर्चर कराते हैं, किडनैप कर लेते हैं, हर चीज से प्रताड़ित करें लॉर्डशिप। मैं पूरा लॉर्डशिप परेशान हो गया हूँ लॉर्डशिप। मेरे को जानकारी होगी तब तो मैं लॉर्डशिप आगे करूंगा। ये जो इन्होंने राजस्व के नाले में जो अभी फर्जी हस्ताक्षर करके किया है इन्होंने, आदेश आदेश करवा लिया, धारा 250 का आवेदन लगा दिया, मेरे घर एक नोटिस नहीं आया लॉर्डशिप। जब मेरे को जानकारी होगा तभी तो मैं आगे एफआईआर करूंगा लॉर्डशिप। मेरे को जानकारी हुई तो मैंने कलेक्ट्रेट में चैलेंज किया, मैंने एफआईआर किया लॉर्डशिप। मेरे घर तो एक सिंगल नोटिस नहीं आई। आप पूरी फाइल मंगा लीजिए लॉर्डशिप, उसमें अगर मेरा एक सिंगल हस्ताक्षर होगा तो मैं रेडी हूँ लॉर्डशिप, जो आप पनिशमेंट देंगे। इसकी घटना है एफआईआर किसने लॉन्च कराया? दी कंप्लेनेंट, जिसके साथ हमारा लैंड डिस्प्यूट चल रहा है। अच्छा। एंड दिस लैंड डिस्प्यूट इज गोइंग ऑन माय लॉर्ड फ्रॉम लास्ट मोर देन 17 years. If my lord may look P4 page number 45, I had purchased the property in 2010. Even prior to purchase of the property, the dispute between the husband of the complainant and original owner was going on, and 250 order was passed on 17/9/2009. PA4 page number 45. These proceedings. नहीं, जस्ट मिनट। जो आपकी टेनेंट, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का डिस्प्यूट? नहीं सर, डिस्प्यूट जमीन का है सर। आई एम द ऑनर ऑफ द लैंड 453/1। ये लोग कौन है? ये चारों लोग कौन है ये लोग? मतलब the only number one is the owner of 453/1 and 454/1. They have purchased the property. अच्छा। He has purchased the property by registered agent अच्छा। from one Ashok Ubrani. Ashok Ubrani was the original owner of the land. The complainant land, according to them, is adjacent with the land of the applicant. अच्छा। This dispute that the complainant husband has encroached over some of the portion of the land of my erstwhile owner, that dispute started, my lord, in 2009. My erstwhile owner made an application under section 250 of the Land Revenue Code, and the order was passed in his favor way back 17 years back, my lord, on 17/9/2009. A4 page number 45 is the order. This dispute was contested by the husband of the complainant, my lord. Ultimately, it reached to the court of commissioner. I have pleaded in ground number E. The commissioner has set aside this order, and matter has been remanded back to the lower authorities, my lord, to pass a fresh order. It is still pending under consideration. Now, subsequently, what had happened? An application was filed for demarcation according to them. The FIR was lodged. That's the applicant number one only. The allegations are like an applicant number one, who is 70 years old man, that he made an application, fresh application for demarcation in 2022. And that application was forced. She never made an application for such demarcation. Demarcation conduct ho gaya. That demarcation was challenged by them before the collector. Collector has set aside the demarcation on 6/2/2025, and it was a demarcation of 20th/5/2020. अब 2022 के बाद, now 2025, the FIR has been lodged that in 2022 the applicant number one, by making the forged application, has made an application for demarcation, obtained an order which was the subject matter of the collector. It has already been set aside by the collector. That is A8 page number 60. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर जिसमें जो है, अगर आप FIR देखें फॉर ए मोमेंट, पेज नंबर 25, देयर आर 2 FIR। बाकी और सर पूरे परिवार को, ये सब भाई है। 2, 3, 4 कौन है? सर ये ब्रदर्स है, या ऑनर भी नहीं है। और ये तो एलिगेशन, लड़का है इनका। जी नंबर 2, यस। और ये सब रिश्तेदार है सर, रियल ब्रदर्स। और ये देखेंगे नंबर 1 को, नंबर 1 दूलाराम है सर। ये भी तो लड़के ही हैं। यस यस, दूलाराम सन ऑफ, ये दोनों लड़के हो यस गए। यस 2 और यस, 4, और मतलब पिता को और पितरों को, और महेंद्र है। तीनों को, हाँ 2 3 4। और अगर FIR देखें सर, पेज नंबर 25 देखें। अब ये लैंड डिस्प्यूट जो चल रहा है, तीनों लड़के ही हैं। तीनों लड़के। और सर एलिगेशन जो है, सुनते हैं तुमको भी दिया। तुम्हारा चेहरे देख के पूरा याद आ गया हमको। जब तुम इधर थे तो कैसा था? जी सर, मैं पेज नंबर 25 पे FIR देखें सर, हाउ दे हैव फॉल्सली इम्प्लीकेटेड द एंटायर फैमिली। पेज नंबर 25 में FIR है, और ये खुद बताते हैं कि 2022 की घटना है, 2025 में FIR है। Are you encroaching upon his land or अदर वे राउंड, other way around? हाँ, वो 250 का जो ऑर्डर था, दिस ऑर्डर वाज 250 ऑर्डर वाज पास अगेन द हस्बैंड ऑफ द कंप्लेनेंट। दैट ऑर्डर वाज इन ऑन द इंस्टांस ऑफ माय अर्स्टवाइल ऑनर। मैं तो तब ऑनर भी नहीं था। मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये डिस्प्यूट 17 साल से चल रहा है।
मेरा अर्सवाइल ऑनर भी इनके हस्बैंड के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा था कि यू हैव एंक्रोच अपॉन Okay, माय so लैंड। whether the dispute between the erstwhile owner and the husband of the My lord. complainant My lord. has been put to rest by any court of law is still going on. It is A4 page number 45 was the order passed by the Tehsildar, and now if my lord may look ground number E, that order ultimately has been set aside on 29/5/2011 and matter has been remanded back. ये dispute तो हमारा चल ही रहा है 45 17/9/2009 A4 पेज नंबर 45 हुआ ये और नहीं, अल्टीमेटली पूरा ऑर्डर आपने नहीं लगाया क्या? सर लगाना चाहिए था ना, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। आखिरी पेज का नहीं। अभी सर ये अच्छा, ये जो ऑर्डर हुआ Yes. तहसीलदार का, तो इट वाज चैलेंज बाय हिज, यस ग्राउंड नंबर ई में लिखा है सर हमारे इन्होंने चैलेंज किया चैलेंज किया respondent वो ने। प्रोसीडिंग सर कमिश्नर तक चली ठीक है, उसके और बाद तो- कमिश्नर ने उस ऑर्डर को सेट असाइड करके रिमांड बैक कर अच्छा, एट हर इंस्टेंस। यस यस ठीक, अब वो जो तो रिमांड मैटर सब जुडिस है। अब इसी के बीच क्या हुआ, अब ये आरोप इनका ये है सर एफआईआर में देखेंगे आप कि 2022 में अप्लीकांड नंबर 1 ने एक एप्लीकेशन फ्रेश डिमार्केशन का लगाया। इनका कहना है कि हमने वो एप्लीकेशन कभी साइन नहीं किया ना, हम कभी गए, ये एप्लीकांड नंबर 1 ने किया है ये पूरा काम, ये फोर्जरी की एप्लीकांड नंबर 1 ने, एंड दे गॉट एन ऑर्डर ऑफ डिमार्केशन, ऐसा इनका एलिगेशन था। The demarcation was conducted and a very one vital document, my lord, may have a look, which is page number 58, my lord. And that order has been set aside. Page number 50. वो डिमार्केशन सेट हाँ वो set aside हो गया। at their Yes, instance. yes, yes. 2025. So twice this happened. The matter was remanded by the commissioner at her instance. The demarcation which you claim, that was also set aside. So, it Then was- you are instrumental Madam, in all these things. Sir, It means सर मेरा कहना है that you are trying to dispossess नहीं, these मेरा कहना है persons. कि वो तो मैं था ही नहीं सर तब। नहीं, erstwhile ओनर जो था, तो उसने हेराफेरी की, आपने उससे प्रॉपर्टी खरीदी। सर हम तो बहुत बाद में खरीदे प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बट ही डिड नॉट हैव द प्रॉपर टाइटल। सर नहीं, इनके पास भी स्टेट लीड, हमारे पास भी स्टेट लीड, डिस्प्यूट सिर्फ सर एंक्रोचमेंट का है। हाँ, अब पेज एनक्रोचमेंट नंबर 58 देखें सर 5 मिनट के लिए। तो एनक्रोचमेंट में तो हिज एलिगेशन इज दैट यू आर एनक्रोचिंग हिज नहीं प्रॉपर्टी इन्होंने कभी एंड नहीं, यू से दैट दे आर सर इन्होंने कभी नहीं एप्लीकेशन लगाई। भाई डिमार्केशन तो हमारे- डिमार्केशन तो देखिए जो आप लोग ने किया, तो वो डिमार्केशन भी सेट असाइड हो गया। पेज नंबर 58 पे देखेंगे, अगर हेडेड बीन ए केस देयर एलिगेशन एंड द एलिगेशंस आर The अगेंस्ट नंबर 1। problem is that this person has come before the writ court, What and the manner in which these persons have been troubling this boy and his mother. सर द एलिगेशंस आर ओनली अगेंस्ट नंबर 1। That is what, and these are the three sons. नहीं उनके खिलाफ नहीं है सर। नहीं है तो नहीं, but these are the three sons. सर अगर देखेंगे पेज नंबर 58 पे पंचनामा But है। your client, with all respects, sir, he's a for an 70 years person, harassing this person. His main grievance is against number 2। Number 2 कौन? Number 2 Narendra Motwani। His इनका entire grievance is against number 2 Narendra Motwani। He lost 2 FIRs। Probably this boy was being implicated in a criminal case at their instance, But on- in which this court But has there are taken a 2 property. FIRs 2 FIRs were registered. facing madam। Hmm. 2 नहीं, FIRs have been lodged। probably in a case of theft, probably theft का Sir, केस था, जी सर मैं बोलूं सर and theft का केस था, तो सिर्फ नंबर 2 के खिलाफ है। theft का केस था, and he was being Sir, roped in. I am facing 2 criminal cases my lord on his instance। ठीक 2 है, तो FIRs। नहीं, ये पेज नंबर 58 देखें बड़ा एंड दिक्कत नॉट है। ओनली एंटायर फैमिली my lord। अब आप बताएं सर। सर इन्होंने सिर्फ आधी स्टोरी अभी तक बताई है। ये डॉक्यूमेंट पहले सर बस एक सेकंड, अब लॉर्डशिप मैं बोलूं, लॉर्डशिप इन्होंने अभी तक सिर्फ आधी स्टोरी बताई है। इन्होंने एक सिविल सूट भी हमारे प्रति प्रस्तुत किया गया था न्यायालय में, जिसने न्यायालय ने इसकी सिविल सूट को निरस्त कर दिया, जो मैंने अभी ऑर्डर लगाया। क्या बोल के सिविल सूट प्रस्तुत किया था कि हमने इनकी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया 2008 में, जबकि हमारी प्रॉपर्टी 1962 से कब्जा है, जिसमें लोअर कोर्ट ने इनके ऑर्डर को खारिज कर दिया, सेशन कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। अब ये लोग 2022 में मेरी मम्मी के नाम से जाके फर्जी हस्ताक्षर करके सीमांकन रिपोर्ट अपनी फेवर में करा लेते, बिटूला राम मोटवानी धारा 250 का आवेदन प्रस्तुत कर देते हैं, और जो इन्होंने राजस्व न्यायालय का जो आदेश बताया वो भी राजस्व मंडल में पेंडिंग है लॉर्डशिप, 7 तारीख को है, ये लोग आते नहीं है लॉर्डशिप, जबकि हाई कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया इनके केसेस। उसके बाद जब हाई कोर्ट ने जब इनको कब्जा नहीं दिलाया, सिविल सूट फाइल किया था। देखिए सर नाम देखिए सर अशोक कुमार होगा। देखिए नाम अशोक कुमार उबरानी, जो erstwhile owner, so the property has, you have Erstwhile stepped, owner में when you have stepped in the shoes of that erstwhile, then you are responsible for Yes. all these things, because the property is not yet clear. number 1 has only purchased, number 2 to 4 लॉर्डशिप they are इन्होंने not जो the- परचेस किया है वो बकायदा जानकारी होते हुए परचेस किया, उसके परचेसेस में That is बकायदा what- लिखा हुआ है कि हम सारे विवाद जानते हुए इस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं। ये अब माफिया हाई है, जिन्होंने कोर्ट ने बेचा है इस वो भी order- माफिया है लॉर्डशिप। हाई कोर्ट आप फिर इस ऑर्डर को चैलेंज किया ये क्या? 7/11 का ऑर्डर है सर, जो इन्होंने सप्लाई किया है। इट इज अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ये 26 किस तारीख का ऑर्डर है? 26/11/2010 का order है।
10 का order है ये it was the subject matter of a second appeal and that second appeal was also dismissed. बताइए वो भी डिसमिस हो गई आपकी। और लॉर्डशिप कब्जा हमारे पास प्राप्त है, ये लोग बोलते हैं कि हम इसकी प्रॉपर्टी में वो कह रहे हैं, जबकि हमारे पास कब्जे में हमारी आके बाउंड्री वॉल भी तोड़ दी लॉर्डशिप। मैं दुकान चलाता था पापा के बाद मेरे गुंडे बेच के दुकान बंद करवा दी, मैं घर में रहता था लॉर्डशिप, आज किराए के घर में रह रहा हूँ, मेरे ऊपर फर्जी केस बना दिए, पुलिस से टॉर्चर कराते हैं, किडनैप कर लेते हैं, हर चीज से प्रताड़ित करें लॉर्डशिप। मैं पूरा लॉर्डशिप परेशान हो गया हूँ लॉर्डशिप, मेरे को जानकारी होगी तब तो मैं लॉर्डशिप आगे करूंगा। ये जो इन्होंने राजस्व न्यायालय में जो अभी फर्जी हस्ताक्षर करके किया है इन्होंने आदेश आदेश करवा लिया, धारा 250 का आवेदन लगा दिया, मेरे घर एक नोटिस नहीं आया लॉर्डशिप। जब मेरे को जानकारी होगा तभी तो मैं आगे एफआईआर करूंगा लॉर्डशिप। मेरे को जानकारी हुई तो मैंने कलेक्टेड में चैलेंज किया, मैंने एफआईआर किया लॉर्डशिप। मेरे घर तो एक सिंगल नोटिस नहीं आई, आप पूरी फाइल मंगा लीजिए लॉर्डशिप, उसमें अगर मेरा एक सिंगल हस्ताक्षर होगा तो मैं रेडी हूँ लॉर्डशिप, जो आप पनिशमेंट देंगे। इन्होंने ऑर्डर करवा लिया, हस्ताक्षर कर लिया, धारा 250 का आवेदन कर दिया, जब एक केस को हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया कब्जा दिलाने के नाम से, ये फिर से तहसील में फर्जी हस्ताक्षर करके लॉर्डशिप वो सारी चीजें कर रहे हैं, मेरे ऊपर फर्जी केसेस बना दिए लॉर्डशिप, एक मेमोरेंडम और एक पंचनामा। एक्ट में आपने उसको गैम्बलिंग एक्ट में रखवाया। सर what एक मेमोरेंडम और एक saying, पंचनामा के page बेस पे number मुझे सिर्फ 25 आरोपी बनाया गया। FIR है, जो पेज नंबर 25 पे FIR, the contents of the FIR, it is their own FIR. What he is saying, my lord, पेज नंबर 25 पे थर्ड लाइन ऑफ दैट एक चीज मैं और बोलना FIR, पेज चाहूंगा, नंबर पेज नंबर 25 फोर्थ लाइन देखे सर, पेज नंबर 25 पे फोर्थ लाइन से स्टार्ट है। ये 25 फोर्थ लाइन, हमारे नाम की भूमि मेरे पति द्वारा अपने जीवन काल में बाउंड्री बनाया गया था, जिसे अपना जमीन सीमा बताकर दूलाराम मोटवानी नंबर 1 द्वारा तुड़ा दिया तथा सीमांकन संबंधी विवाद होने पर दूलाराम मोटवानी ने मेरे नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर तहसील कार्यालय में 10/3/2022 को एक फर्जी आवेदन शपथ पत्र प्रस्तुत कर तथा किसी अन्य महिला को मेरे नाम से तहसील कार्यालय में उपस्थित कर ऑर्डर शीट में मेरा हस्ताक्षर करवाकर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कराया नंबर 1 का, जिसके आधार पर दूलाराम मोटवानी द्वारा तहसील कार्यालय में मेरे पुत्र के विरुद्ध कब्जा दिलाने का आवेदन लगाकर कहकर दूलाराम मोटवानी और बाकी पूरे परिवार। अच्छा अब एक चीज बताइए आपने तो जो भी आपका ग्रीवियंस है विद दूलाराम मोटवानी एंड एट द मोस्ट नरेंद्र, ये 3 और 4 के तो कोई ग्रीवियंस है नहीं सर इन्होंने आके बाउंड्री वॉल तोड़ी है मेरी, 3 और 4 चार, और साथ में तहसील ये लोग जाते हैं बता रहे सर, 2022 की बात बता रहे सर, और लॉर्डशिप मैंने 22 में भी एफआईआर दर्ज कराया था। सर बाउंड्री वॉल का कहीं लॉर्डशिप इनके नाम से 4 क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जो भी है देखिए मिस्टर मनोज, द प्रॉब्लम इज दैट you have not been the erstwhile owner has not been successful in any of the litigations. You being a big shot, sir, number these 1, people sir, being a number poor 1, person, sir, number 1, they have the problem is that you are losing the sympathy of the court. Sir, that is number what 1 or you number the, I understand, I understand. it started from in a case where he was not wanted in a criminal case and you got him roped in during the course of investigation under the Gambling Act. He had appeared in person, the court has taken notice of it and Sir, number 1 और number 2 का जो है सर, and his father has been a lawyer. His father has been a lawyer जो क्रिमिनल केसेस who has died probably. जो क्रिमिनल केसेस सर, जो क्रिमिनल केसेस नंबर 2 के खिलाफ है, जो इन्होंने इंस्टांस पे किया, वो पिटीशन में इन्होंने नंबर 2 के खिलाफ बोला है। कौन सा? ये क्रिमिनल केस जो है वो नंबर 2 के खिलाफ है, जो बताते हैं एलिगेशन। इस बार क्या हुआ, इन्होंने जो एलिगेशन लगाया कि एप्लीकेंट नंबर 1 ने एप्लीकेशन लगाई, You are so instrumental in all these things. कुछ भी नहीं है सर। You are instrumental. Ultimately, my lord, let the matter be investigated. My lord, what I am submitting. So far as number 1 and 2 is concerned, obviously, my lord, he has alleged. Number 1 and 2, number 2 के खिलाफ में सर एलिगेशन है और FIR है। बट माय लॉर्ड मैं अप्रिशिएट, FIR तो चारों के खिलाफ है। नहीं, ये FIR में सर उन्होंने क्या किया कि आपकी ये क्राइम नंबर की 149 की FIR कौन सी? नंबर 2 के खिलाफ है। 149 नंबर, बाकी लोगों के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं, सिर्फ नंबर 2 के खिलाफ है क्रिमिनल केस। 149 चारों 149 तो प्रेजेंट वन है सर, ये तो प्रेजेंट वन है। इस प्रेजेंट वन FIR में व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कन्विंस यू, ये जो 4 वाला है ये तो चारों के खिलाफ है, जिसमें आप दूलाराम मोटवानी के खिलाफ आरोप लगाया है इन्होंने कि दूलाराम मोटवानी ने आवेदन लगा के दे गॉट एन ऑर्डर फ्रॉम द तहसीलदार व्हिच हैज बीन सेटिस्फाइड बाय द कलेक्टर। That was an allegation which has been made against the Dularam Motwani. But obviously, when the land dispute is going on from last so many years, the entire family subsequently have been. नहीं, just a minute.
एक चीज बताइए, और दूसरी एक ये ओनली एफआईआर आपके खिलाफ है कि और भी कोई एफआईआर सर है? इनके इंस्टांस पे नंबर 2 के खिलाफ 2 FIR नंबर 2 दूसरी एफआईआर कहाँ है? नंबर 2 लगाया हुआ है सर मैंने। कहाँ लगा एक रखा है? एक है सर FIR। तो कहाँ है नंबर? Yes, I have read it in my application also. And both of there are 3 FIRs. One has been quashed and 2 FIRs has been 3 एफआईआर और थर्ड के खिलाफ, नंबर 2 के खिलाफ है। नहीं नहीं, कौन सी एफआईआर पॉश हो गई आप जी। बताएं? लॉर्डशिप इन्होंने I have pleaded my lord that paragraph number 4. नहीं, अब एक चीज ये हम लोग पहले ये बताइए, इसमें दूसरी एफआईआर कहाँ है नंबर 2 के खिलाफ? वो लगा नहीं रखा है? ये उन्होंने अपने कंप्लेंट के साथ लगाई। अच्छा, कंप्लेंट के साथ जी। 149 ही तो लगा रखी है Yes. इसमें। ये सर अच्छा, देखिए पेज दूसरी है नंबर 19 कंप्लेंट का 916 है 2022 की। इसमें क्या हो रहा है? सर ये है, देखिए अगर ये इसमें वाली FIR देखेंगे इसमें क्या है? इसमें क्या हुआ सर, आपका? इसमें क्या हुआ, इनका बयान हो रहा था। हाँ हाँ, तो इनका नहीं, बयान चार्जशीट हो आ रहा गई क्या? था तो इसकी चार्जशीट आ गई क्या? मैंने चार्जशीट आ गई, बेल भी हो गई, इनका बयान नीचे चल रहा है नंबर 2 के खिलाफ जो केस ट्रायल में चल रहा है। ट्रायल में। इसमें क्या हो रहा है सर कि बयान में पेज नंबर 67 देखे सर मेरे पिटीशन का, मैंने बयान की कॉपी लगाई है इसकी। हम्म, एंड दिस FIR वाज पीयूष गंगवानी अगेंस्ट नरेंद्र मोटवानी, पेज एप्लीकार्ड नंबर 2। ये एक FIR इनके इंस्टांस पे हो गई सर। दूसरी FIR फिर से इनके इंस्टांस पे है। That FIR also my lord will find place along with the reply, along with the complaint again at page number 15. ये भी इन्होंने किया है। पेज नंबर 13 पे है। एक मिनट सर, ये पेज नंबर 13 का कंप्लेंट के साथ सर बताना चाह रहा हूँ। नहीं, ऑब्जेक्शन लगाया है। इनके रिटर्न में है। रिटर्न में ऑब्जेक्शन फाइल किया है। हाँ, पेज नंबर पेज तो नंबर सर 149 यही लगी है। और तीसरी कौन सी है? तीसरी अजय सिंह वाली जो सेटिसाइड हो गई है CRMP में सर। 425। हाँ। उसका ऑर्डर कहाँ लगा है? that was set aside my lord in CRMP number 7661/2020। ऑर्डर लगा है? वो भी नहीं लगा है। नहीं, प्लीडिंग इसमें लिखा है सर। इसके बाद सर पेज नंबर 21 के बाद देखेंगे पेज नंबर 25 की फिर से पीयूष गंगवानी, इसका मैंने स्टेटमेंट लगाया है सर, जो नीचे वाली कोर्ट में चल रहा है, वेयर ही इज नॉट कमिंग फॉरवर्ड इन दैट क्रिमिनल केस। नहीं, तो आप तो 3 ही एफआईआर इसकी कह रहे थे ना? नंबर 2 के नंबर 2 के खिलाफ 3 एफआईआर FIR इन्होंने दिखाया है। यस। और इनके खिलाफ दूल्हा एक है। तो एक तो पॉश हो गई आप बता रहे हैं, और क्वेश्चन हमारी हुई सर। ही मतलब इन्होंने जो दिखाई वो पॉश हो गई एफआईआर। नहीं, मैंने नहीं लगाई लॉर्डशिप, अजय सिंह ने FIR लगाई। चल रही है सर। नहीं, कौन सी पॉश हुई है? ये क्वेश हुई है सर, ये वाली आप ये पेज नंबर 3। हाँ कौन सी है? ये 606 वाली क्या? यस 606 वाली? नहीं, 916 वाली क्वेश्चन हुई लॉर्डशिप, कॉम्प्रोमाइज में 916 पेज नंबर कॉम्प्रोमाइज हुआ था उसमें। कॉम्प्रोमाइज थर्ड पार्टी सर। अच्छा, 14 लाख का घोटाला किया गया था, आरोपी जेल गया था, उसके बाद कॉम्प्रोमाइज कर लिए इन्होंने अजय सिंह के नाम से। वो सेम ऑफेंस और सिर्फ फर्जी हस्ताक्षर करके। इन्होंने लिखाई थी? नहीं लॉर्डशिप, अच्छा, अजय किसी सिंह और बाकी है। आगे वो टोटल 3 सेम ऑप्शन लॉर्डशिप, फर्जी हस्ताक्षर करके बैंक से नोट निकालवा लिए। ये भू माफिया लॉर्डशिप, यही काम है इनका। ठीक है। टोटल 3 लोग है सर, टोटल 3 FIR है। 3 FIR में से 2 FIR were on the instance of the applicant, 1 FIR against number 2, against number 2 मैडम, number 2 and so number 2 के खिलाफ 1 FIR has been lodged on the instance of number 2 against the complainant. Dismissed. That is all. Finished. But so far other 2 applicants are I think you people are sufficient. You can take recourse to law. You are agreed. That is all. Finished. Item 30.